میرے نگر کے عظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی، مجھے سننے کے لیے یہاں تشریف لایا، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں۔ یقینی طور پر میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں اس کا تعلق میری ذات سے نہیں، بلکہ میں بھی اس وطن، اس قوم اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے مفادات کے خاطر ہی اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو مجھے امید کامل ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ہمارے اس تحریک کے اندر، اس جدوجہد کے اندر شامل حال ہے اور آپ شریک ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی احسان نہ میں گزر سے یہاں آ کے کر رہا ہوں، نہ آپ میرے لیے یہاں جمع ہو کے کر رہے ہیں، بلکہ ہم سب کا یہ ایک مشترکہ کاز ہے جو کہ ہم مل کے ہم نہیں اٹھائیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کہ آپ نے تشریف لایا۔ تو بار بار چونکہ آنا نہیں ہوتا ہے، ہمارا سیکورٹی ایریاز ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی ایسے نہیں ہوتے کہ ہم بارہا جو ہے پاکستان کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرح اور مختلف مافیاز کی طرح ہم جلسوں کا انعقاد کر کے لوگوں کو جمع کر کے یہ ساری چیزیں کمرشل بنیادوں پر کرنے کی نہ پوزیشن میں ہے، نہ ایسا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آج آپ کے پاس میں آیا ہوں تو تھوڑا سا وقت لینے کی کوشش کروں گا۔ تنظیم سازی سے کہیں زیادہ قومی سطح پر ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور اگر ذہن سازی نہیں ہوئی، مقصد کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو تنظیم بنائیں گے تو وہ تنظیم بھی ہائی جیک ہو کر کوئی دوسرا اپنے ذات کے لیے استعمال کرے۔ تنظیم تو ہمارے پاس بہترین گلگت سکاؤٹ تھی نا، جس نے ڈوگروں کو بھگا کے تراکبل سے آگے کیا، لیکن فائدہ کس کو ملا؟ فائدہ تو اس کو ملا جو اس تنظیم کو استعمال کر رہا تھا۔ اور اس وقت ہمارے لوگوں کی ذہن سازی نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر کا 4000 مربع میل رقبے پر مشتمل علاقے کا حوالدار صدر بن گیا اور ہمارا صدر CSO بن گیا۔ یہ ذہن سازی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ آپس میں کوئی قومی تحریک نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کوئی مشترکہ کاز نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور نگر میں ہمارے ہیرو بابر خان صاحب اگر کوئی کام کرتے تھے تو شاید پنیال میں لوگوں کو پتہ نہ ہو، اگر وہاں گلگت میں کرنل حسن کوئی کام کرتا تھا تو بلتستان میں اس کے بارے میں علم نہ ہو، یاسین میں لوگ اس کے بارے میں نہ جانتے ہو، جس کا رزلٹ یہ آیا کہ ہم 28,000 مربع میل رقبے کو آزاد کرا کے ڈنڈے کا شکار ہوئے، اور وہ 4,000 رقبے کو آزاد کرا کے صدر، وزیراعظم، جھنڈا، ترانہ، شناخت، ساری چیزیں ان کو مل گئی۔ وہ اس لیے کہ اس وقت وہاں پر نیشنل کانفرنس بھی موجود تھی، مسلم کانفرنس بھی موجود تھی، کانگریس اور مسلم لیگ کے اثرات بھی تھے، ہمارے پاس فوجی تنظیم کے علاوہ کوئی دوسری تنظیم نہیں تھی، جس کا رزلٹ یہ آیا کہ فوجی بنیادوں پر ہم نے بڑے اس طرح وہ کیے، فتوحات کیے، لیکن سیاسی طور پر شکست کھا گئے۔ اور اس پر میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں تھوڑی بہت چونکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو کچھ ایشوز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا صدر نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی نہیں ہے گلگت بلتستان کا، یہ بھی کوئی نقصان کا کام نہیں ہے میرے نزدیک۔ ہمارا جھنڈا بھی نہیں ہے، ہمارا ترانہ بھی نہیں ہے، ہمارا اور بہت ساری چیزیں جو قوموں کی ہوتی ہے ان سب کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شناخت نہیں ہے، اور اس شناخت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس نتیجے کی بنیاد پر ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جب میں بالورستان کی بات کرتا تھا 80s کے دوران میں لوگوں کو مدعو کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس وقت لوگ کہتے تھے کیا بالورستان اور قبرستان کی باتیں کرتے ہو، کام کی بات کرو، نام سے کیا کرتے ہو۔ تو اس وقت میں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کا پورا کام خراب نام کی وجہ سے ہوا ہے، چونکہ آپ کے پاس نام نہیں ہے۔ کشمیری ایک شناخت ہے، پنجابی ایک شناخت ہے، پختون ایک شناخت ہے، سندھی ایک شناخت ہے،
बलोच एक शनाख्त है। पाकिस्तान से बाहर जाओगे तो इंडियन, इरानियन, अरब, जापान, डच, फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकन, ये सब की शनाख्त है। लेकिन हमारा क्या है? हमारी कोई मुश्तरका शनाख्त नहीं है। हमारे लास्ट जो है ये जो हमारा गुजरा हुआ जो वो माजी है, माजी करीब जिसे कहते हैं, वो जो माजी करीब के अंदर आपकी टोटल शनाख्त नगर है, और आज की भी आपके जहनों के अंदर नगर है। आप अच्छी तरह देख लें, ठीक है। नगर की बात आएगी तो आपकी गैरत जागती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की बात आएगी तो थोड़ी हैंकी फैंकी हो जाएगी, क्योंकि उसमें और भी बहुत कुछ है। इसी तरह सामने हुंजा वालों का हुंजा की बात आ गई तो बड़े जो है वो इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन गिलगित की बल्तिस्तान की बात आएगी तो पैसिफिक हो जाएंगे। बल्तिस्तान की बात आएगी तो बल्कि बिल्कुल आंख बगोला होगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की बात आएगी तो थोड़ा बहुत नरम हो जाएगा। तो यही हालत गेजर में भी है, दियामर में भी है, गिलगित में भी है। वजह क्या कि हमारी वो कौमी शनाख्त जो ये नगिर, हुंजा, यासीन, गुपिस, बुनियाल, इश्कोमन, शिगर, खरमन, रोंदो या आगे चलकर स्कर्दो, दारल, तांगिर, चलास, अस्तूर की बुनियाद पर जो थी, उससे बढ़कर जो बड़ी शनाख्त हमारी होनी चाहिए, वो शनाख्त माजी करीब में नहीं है, बल्कि ये शनाख्त बहुत ज्यादा माजी बईद में। और माजी बईद में जितनी शनाख्तें हमारी है, उसके बारे में हमारे पास मालूमात नहीं है। हमारे पास बिल्कुल भी मालूमात नहीं है। सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हमारे अलावा भी ये है कि परदादा का नाम मुश्किल से लोगों को याद है। मैं अब आता हूं किस चीज पर, नेशनलिज्म पर। असल बात आपको मजहबी जमातों ने यहाँ ये भी कहा होगा कि कौम परस्ती जो है वो बुत परस्ती है, कहा भी होगा कौम परस्ती के बारे में बहुत सी बातें की होंगी। आज मैं आया हूं उन बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए कि कौम परस्ती बुत परस्ती नहीं है, बल्कि मफादात का टकराव में ये चीजें होती है। और कौम परस्ती कहाँ जाकर बुत परस्ती होती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। कौम परस्ती अपनी शनाख्त के लिए जो भी करता है, जो भी इस पर रिसर्च करता है, वो कोई बुराई नहीं है। मैं उसी पे जा रहा हूं। आप कहेंगे कि शायद नगर ही हमारा आखिरी शनाख्त है और उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, तो ये भी गलत है। मैं आपको मुखातिब ही इस बात पे करना चाहता था कि मैं आज खित्ते बुरशाल के अंदर आया, मैं अपने बुरुशु लोगों के साथ, भाइयों के साथ मुखातिब हूं। हकीकत बुरशाल में है, नगर में नहीं है, हुंजा में नहीं है, हकीकत बुरशाल में है। और उससे कबल भी हमारे इलाके आबाद थे, और हम जमाना कदीम से उस वक्त से आबाद है जब मिस्र में फराइन मिस्र की हुकूमतें हुआ करती थी, जब इराक का नाम बाबुल था, जब इधर हिंदुस्तान के अंदर जो है कदीम बादशाहतें थी, यहाँ चाइना के अंदर बहुत पुरानी डायनेस्टीज चल रही थी, रूस के अंदर और दूसरा अफ्रीका के अंदर। हम उस वक्त से आबाद हैं, और हम कोई नई कौम नहीं है, हम कोई अभी पैदा हुए लोग या अभी हिजरत करके आए हुए लोग नहीं है, हम बहुत कदीम जमाने के लोग। जब यहाँ इंसान आबाद था तो यहाँ सनातन धर्म हुआ करता था, कुदरती मजहब। मैं मजहब को भी टच देते हुए चलूंगा। सनातन धर्म जो है वो कुदरती मजहब, जैसे ये कलश डूम वाले एक्चुअल जमाना करीब में पूरे जिले में तक पूरे इलाके में ये लोग थे और यही मजहब। फिर उसके बाद यहाँ ईरान से दो मजाहिब ट्रेवल करके आई है। पहली मजहब जब ईरान से, सेंट्रल एशिया से बुर्शिस की स्पीकिंग लोग जब यहाँ आए कोहकाब के इलाकों से, तो फिर उन्होंने अपने साथ पारसी मजहब, ज़रतश मजहब भी लाया। बुर्शिस की बोलने वाले और यशकुन कबाइल का मजहब, अबाव अजदाद का हमारा ज़रतश मजहब, और वो ज़रतश मजहब फैला इस इलाके के अंदर। आज भी आप देखेंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो आंख के ऊपर से चलना या आंख की बेहुरमती करना या चूल्हे के अंदर पानी डालना अब भी मना किया जाता है, बुरा समझा जाता है। ये उसी का असर है। तो उस जमाने में जब यहाँ बुरशाल की रियासत हुआ करती थी, आज जब बुरशाल कहते हैं तो लोगों का ख्याल ये होता है कि ये कोई नगर हुंजा या यासी नहीं,
हुंजा, नगर और यासीन में बुरशाल के मजाफाती इलाके बुरशिस की जुबान इन इलाकों में बच गई है। बुरशाल एक्चुअली चित्राल से बल्तिस्तान तक इस पूरे खिते का नाम था। आप तिब्बत की डिक्शनरी निकाल के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बुरजा ए कंट्री, BROUZASA लिखा हुआ है, बुरजा ए कंट्री इन बिटवीन तिब्बत एंड पर्शिया। तिब्बत मीन्स बल्तिस्तान और पर्शिया मीन्स बदख्शान है, चित्राल है, ये ईरान नहीं है, मतलब जहां से फारसी शुरू होती है। और उसी जमाने में बुरशाल का हेडक्वार्टर यहाँ अलियाबाद में या नगीर में या आगे यासीन में नहीं था। बुरशाल का हेडक्वार्टर खुद गिलगित था, और गिलगित का उस वक्त नाम बुरशिस्की में सरेगन था। सारगन नहीं है, ये सरेगन है, तालाब का रास्ता। ये बुरशिस्की आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। और इसी तरह सामने बरेगन था जो बाद में फारगो बन गया। इसी तरह ऊपर बरमुस है, वो बरमस नहीं है, मतलब नाले की मूस की जगह। और इसी तरह आप सिरमिश को ले ले, आले नोमिल को ले ले, हरतिंग दास को ले ले, मतुम दास को ले ले, ओशकन दास को ले ले, आगे जहां तक जाएंगे सारे बुरशाल के जमाने के नाम है। मेरे खुद इलाका बुनियाल के अंदर आएंगे तो शेर किला का पुराना नाम शबुर खंड कहते हैं। ना बोले शबुर खंड नहीं है, बल्कि वो बबर खंड था, उसको शबुर खंड बना दिया बाद में लोगों ने। बबर खंड का सिंपल ट्रांसलेट शेर किला होता है। आप जानते हैं बबर शेर को कहते हैं और खंड किले को कहते हैं। आगे बूबर नहीं है, वो बुरुम्बर है, सफेद नाला। आगे आयश आसमान, नीचे दमास, वो दमास नहीं है, बल्कि वो दलमुस और खटमुस, वहां दो जगह है। दलमुस दमास बन गया, खटमुस को अभी गोटोमुस कहते हैं, गलती से। इसी तरह सामने थिलपी है, आगे चलकर इश्कोमन नहीं है, शिकमल है, शिकमल। इसी तरह आप यहां से शुरू करेंगे, देतर, नलतर, खलतर, इश्कमतर, मथनतर, छंतर, ये इश्कोमन तक यहाँ नगर से। ये तेल तो आप जानते हैं, क्या कहते हैं, चरागे को, ग्रीनलैंड को कहते हैं, मीडो को कहते हैं। ये सारा बुरशाल है। हमें अपनी शनाख्त यहां से शुरू करना है। आप नाराज न हो जाए, खाली नगीर से नहीं करना है, हमने वहां से शुरू करना है, ताकि हम एक कौम बन सके, तब हम एक कौम बन सके। मैं यही कहना चाहता हूं। फिर बुरशाल के बाद यहाँ जब एरियंस आ गए और पशाचा ज़बान आ गई गिलगित में, तो पशाचा और मकामी बुरशिस्की के अमलगमेशन से मौजूदा शिना ज़बान बनी। और ये कदीम बुरशाल के बाशिंदे और नए आने वाले एरियंस ने मिलकर इसको एक्सेप्ट किया। और ये बुरशिस्की के मुकाबले में नई ज़बान, ये शिना वैसे भी आप देखें, अगर ज़बानों की उम्र को आप मालूम करेंगे तो आदात से पता चलेगा। मसलन बुरशिस्की में 10 तक है ना, 10 के बाद 10 और 1, 10 और 2 होता है। इसी तरह शिना में 20 तक है, तो नी बी 20 बीगा 1 बीगा 2, मतलब तो ये जो ऊपर। इसी तरह उर्दू में 100 तक है, तो ये तो कल की बनी हुई ज़बान है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर ये इलाका जो है वो दर्दिस्तान भी कहलाया, दार्दिक लोगों की वजह से, शिना स्पीकिंग लोगों की वजह से। और उसके बाद जब तिब्बत से यहाँ असरात हुए तो बल्तियों के असरात इस इलाके के अंदर हुए, और यहाँ जो रियासत कायम हुई उसका नाम बलोर था, बलोर रियासत। ये जितने नक्शो निगार आपको मिलेंगे, फिर ये भी मैं बताऊं, जिस तरह बुरशाल में हमारी मजहब ज़रतश थी, दर्दिस्तान के जमाने में हम हिंदू मत में आ गए, और फिर बल्तियों ने बुद्ध मत यहाँ लाया। और लेटेस्ट इस्लाम से पहले हमारे आबा अजदाद का मजहब जो था वो बुद्धिज्म था। ये जो आसार आप देखते हैं, ये 18 से लेकर दूसरे खुदा के जितनी भी लिखाइयां आपको मिलेंगी, ये तकरीबन जैन मत और बुद्ध मत और इसी तरह के उसका इशारा करती है। और हमारे आबा अजदाद की 100% पूरी आबादी तकरीबन बुद्धिस्ट थी। फिर ये बुरशाल, ये जो बलोर की स्टेट है, ये एग्जैक्ट एक खुशहाल रियासत हमारी रही है। ये 5वीं सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक, और इसके पूरे आसार हमें मिलते हैं, तारीख भी मिलती है, राजे और उनके जो हेड से है उनके नाम भी हमें मिलते हैं। इसी तरह 8वीं सदी ईस्वी में बलोर टूट गया। बलोर के टूटने के बाद ये पीटी स्टेट्स बन गए, जिनका मैं अभी आप जिक्र मैं कर चुका हूँ। उस वक्त इस्लाम भी इधर आया, और यहाँ बाहर से हमले हुए। यहाँ चाइना से हमला हुआ, यहाँ तिब्बत से हमला हुआ, यहाँ बदख्शान से ताजमुगल का हमला हुआ, और लेटेस्ट जो हमारे ऊपर हमले हुए वो कश्मीर साइड से हुए। तब तक भी हम आजाद लोग थे, और उस वक्त इस्लाम भी आ चुका था, तो तब तक भी हम आजाद लोग थे। जब आखिरी बड़ा हमला, जिस तरह अभी नाटो है, इसी तरह का उस वक्त अंग्रेजों के जेर इंतजाम
पंजाब के सिख जो कि राजा रंजीत सिंह के शिकस्त के बाद वो ब्रिटिश वो हो गए थे, अलाई हो गए थे, फिर डोगरा गुलाब सिंह की फौज, ये सारे मिल मिला के एक इत्तेहादी फौज थी जिसने 1842 में बल्तिस्तान फतह किया था। पहले ही 1842 में ये गिलगित आए और आखिरी लड़ाई हमारी जो है ये 1891 में यहाँ नीलत में हुई जहांगीरलाई में, और ये दोनों रियासतें उस वक्त फाल हुई। उन रियासतों के फाल होने के बाद हम हकीकी गुलाम बन चुके हैं, उससे पहले हम कोई हकीकी गुलाम नहीं थे। और 47 में आप कहेंगे हमने आजादी ली है, मैं उस पर आता हूं, वो आजादी नहीं है, वो आका की तब्दीली है, वो हुक्मरान की तब्दीली है, कोई आजादी वाजादी नहीं है। 1891 में एक अंग्रेज लंदन से जहाज में बैठकर आता है जनाब आली कलकत्ते में, सरंगापट्टम से निकल के वो छकड़े में बैठ के आता है दिल्ली, और दिल्ली से घोड़ों पर आता है श्रीनगर से गधे पैदल चल के वो आता है गिलगित में, और 1841 में इधर आकर हुंजनगर पर हमला करता है। 63 में जो है यासीन पर हमला करता है, और इतना काम करता है कि मकामी राज्यों को अपना ताबे बनाकर उनको हुकूमत हवाले करके चला जाता है। इसका क्या मकसद हो सकता है? उसका आप बज़ाहिर देखें तो पागलपन है। आज कौन लंदन से कलकत्ता जाए तो कलकत्ता से दिल्ली आए, तो दिल्ली से श्रीनगर, तो श्रीनगर से इधर गिलगित, और इधर आकर इन पहाड़ों में लड़े, जबकि उस वक्त के तो छोड़ो गधे भी सही नहीं चल सकते थे उस जमाने में शहरा रेशम पर। ये इसलिए करता था, ये काम उसने इसलिए किया कि उसका दुश्मन रूस यहां पहुंचने का खतरा था। वो पामेर के पीछे अपने दुश्मनों को रोकने के लिए ये इलाके अपने ताबे बना रहा था, और उस वाक़े का नाम है वर्ल्ड ऑर्डर 1। वर्ल्ड ऑर्डर का नाम सुना होगा ना, सब वर्ल्ड ऑर्डर तो कहते हैं सारे, लेकिन ये वर्ल्ड ऑर्डर कोई नया नहीं आ रहा है, अब तीसरा आ रहा है। मैं पहले की बात कर रहा हूं। In the first world order, they have occupied all those areas which are under threat of Tsar Rus. रशियन जार के थ्रेट में जो इलाके थे उन सबको कब्जा करना उनका पहला मकसद था, और वो उस मकसद में कामयाब हुए। होने के बाद इन्होंने हुकूमत की, और फिर अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पर क्रिएट किया, ताकि रूस और बरतानिया की सरहदें, ब्रिटिश इंडिया की सरहदें आपस में डायरेक्ट न मिले। मैं आपके इलाके की अहमियत की तरफ आ रहा हूं, शनाख्त के साथ साथ इन्होंने बनाया। फिर क्या हुआ जनाब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, और हिटलर ने, जर्मनी ने इनकी हालत इतनी खराब कर दी कि हिंदुस्तान छोड़ के अंग्रेजों को जाना पड़ा। जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान की हालत थोड़ी यूनिक किस्म की थी, अंग्रेज के हक में नहीं थी। उस वक्त अमेरिका भी पावर बन चुका था। अच्छा, पावर सेंटर जो है वो आपके लंदन से वाशिंगटन शिफ्ट हो चुका था। तो अमेरिकनों ने यह सोचा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के ताल्लुकात मॉस्को के साथ है, दूसरी बड़ी जमात सीपीआईएम खुद कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की, तीसरी जमात जमीयत उलमाए हिंद के ताल्लुकात भी मॉस्को के साथ है। तो चौथी जमात अंग्रेजों के 4-5 सर मिला के जो है वो मुस्लिम लीग बनाया था। तो ये बेचारे अंग्रेजों के हामी थे, बाकी कोई अंग्रेजों का हामी नहीं था। अगर ये यूं ही हिंदुस्तान छोड़ के चले जाते तो पूरा हिंदुस्तान सोवियत यूनियन का अलाई बनता और एशिया से साम्राज्य का सफाया हो जाता। उस बात को मद्देनजर रख के एक ऐसे इलाके को अलग करके एक स्टेट बनाना था जहां से दिल्ली और मॉस्को का रास्ता भी कटे, और मुसलमानों का ऐसा कोई स्टेट बने जो मुस्तकबिल में मजहब के नाम पर हम कम्युनिज्म के खिलाफ जंग लड़ सके। ये था मेन कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और ये कहते हैं शरीयत के लिए बनाया। तो अब आप खुद देखें कि ये शरीयत के लिए बना है या अमेरिकन मफादात के लिए। इन्हीं बातों पर मुझे एंटी पाकिस्तान कहता है। ठीक है, चले आगे। और उस वक्त जहां जहां आज पाकिस्तान बना है उन्हीं इलाकों के अंदर शऊर नहीं था। पंजाबी बेशऊर थे, पख्तून जो थे वो सारे खुदाई खिदमतगार में और कांग्रेस के अलाइज थे।
बलूचिस्तान कोई सूबा मोबा कोई कुछ नहीं था, एक सिंध था जिसमें एक मेंबर की अक्सरियत थी मुस्लिम लीग की, उसकी एक करारदाद आ गई। और पाकिस्तान के कयाम के लिए जो काम किया, बंगाली जिनकी पहले से बाशऊर कौम थी उसमें बड़ा रोल प्ले किया, और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम अकलियतों ने रोल प्ले किया, जिनको आज आप मुहाजिर कहते हैं। तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा रोल रहा है वो या तो बंगालियों का रहा है या फिर मुहाजिरों का रहा है, हिंदुस्तान के अकलियतों का रहा। और इसी वजह से बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जो बन गया, तो ये इस तरीके में बन गया। और फिर बाद में अमेरिका ने उसकी हिफाजत नहीं की, इसलिए वो लोग अलग भी हुआ, और उसने पूरी तरह हिफाजत की जनाब आली इस पाकिस्तान की। और आपके अपने दौरों के अंदर आपको याद होगा कि 70s के बाद यहाँ इंतहा पसंदी को फरोग दिया गया, अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन बनाए गए, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी गई, और 90s में जो है ये बात अपने एहतमाम को पहुंच गया। ये था जनाब आली सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर था, और उस सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद हुआ, और होने के बाद वो अपने पाये तकमील को पहुंचा। ये सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर था। तो उसी दौरान मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि हम जनरल जिया को कुछ गालियां वालियां देकर गुजारा करते हैं कि उसने ये किया तो उसने वो किया। वो एक मुलाजिम था, वो क्या कर सकता था, उसको भी ऑर्डर्स थे। ये सारा किया था साम्राज्य ने खुद, सोवियत यूनियन के खिलाफ उसको तोड़ने के लिए। और फिर ये भी मैं आपको बताऊं कि इस इलाके के अंदर आप कहेंगे मेरे बातों से ये सारी बातें तो मेरे ख्याल में साम्राज्य कर रही है, हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमारे लीडरों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, आप ऐसा कहेंगे। मैं गलत नहीं कह रहा। इवन देन यहां मजहब भी उनकी तरफ से चलता आया। वो कैसे? मेरी एज 60 है, और यहां 60 से ऊपर या 50 से ऊपर बैठे हुए मेरे दोस्त जो है वो स्कूलों में पढ़े होंगे कि उस वक्त जो दीनियत पढ़ाई जाती थी उसमें बरेलवियत और शैयत थी। मसलन दीनियत के अंदर रसूल अकरम के बाद 4 खलीफा के नाम, और हजरत अली के बाद बीबी फातिमा और हसन हुसैन पर बात खत्म होती थी। और जनरल जिया के उस इरा के बाद, अफगानिस्तान की उस जंग के बाद, वो हजरत अली पे आकर बात खत्म हो गई 4 खलीफा पे। आपके ख्याल में ये कोई जनरल जिया ने किया? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आई? ऐसा नहीं है। असल बात यह थी कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका काम करता था शहंशाह ईरान के जरिए, और शहंशाह ईरान अमेरिका का एजेंट था। तेहरान मरकज था CIA का। जब CIA तेहरान के जरिए काम करता था तो शहंशाह शिया होने की वजह से पाकिस्तान में शैयत था। जब इमाम खुमैनी ने उसकी रजीम को खत्म कर दिया तो तेहरान के बजाय CIA का सेंटर शिफ्ट हुआ रियाज में, और अरब का बादशाह जब CIA का एजेंट बना और चीजें जब रियाज से इस्लामाबाद या कराची दिल्ली आने लगी तो वहाबियत आ गई। वो इसमें कौन सा जनरल जिया का गुनाह था? वो कोई गुनाह नहीं। कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये हकाइक है, इन हकाइक को आपको किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको आपके आबा व अजदाद के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको उस बुरशाल के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको दर्दिस्तान के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, और आपको बलौर के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। आप कैसे समझ पाएंगे कि मेरी हिस्ट्री क्या है? तीसरी में माशरती उलूम होती है, उसमें तीसरी का बच्चा क्या तो उसकी माशरती उलूम क्या। चौथी में जो है वो पंजाब का पढ़ाते थे हमें, अब हो सकता है यहाँ का बनाया हो, मुझे सही मालूमात नहीं है। 5वीं में पाकिस्तान के बारे में, 6वीं में जो है वो साउथ एशिया के बारे में, 7वीं में मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में, 8वीं में जो है वो पूरी दुनिया के बारे में, 9वीं और 10वीं में जो है पाकिस्तान स्टडीज, इसमें गिलगित बल्तिस्तान का कोई जिक्र नहीं होता। तो लोगों को चोलिस्तान के बारे में तो इल्म है, दरियाई रावी और चनाब के बारे में तो इल्म है, पोठोहार और सिंध सागर के बारे में तो इल्म है, लेकिन उसको कराकुरम, हिंदुकुश और हिमालय के बारे में कोई इल्म नहीं है। उसको बुरशाल, दर्दिस्तान और बलौर के बारे में कोई इल्म नहीं है।
हमारे आबा अजदाद कहां से आए, कैसे थे, कोई इल्म नहीं है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी डिफिसिट, इसको कहते हैं शनाख्त की कमी। अब दुनिया की तमाम कौमें शुरू करती है जीरो से। कश्मीर को आजाद कराना है, जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि कश्मीर तो है आजाद कराना है। आपका गिलगित बल्तिस्तान -100 से जीरो पे लाना है, फिर जीरो से शुरू करना है, क्योंकि आपका तो निशान भी नहीं है। वो तो मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद में आकर कहता है मैं कश्मीर से पाकिस्तान आया हूं 2 घंटे में, मैं 20 घंटे में गिलगित से पिंडी जाके कहता हूं इधर गिलगित से आया, करीब से मतलब मरीज से, कि चूंकि शनाख्त तो है नहीं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर शनाख्त एक बहुत बड़ा मसला है, और हमारी कुछ बदबख्तियां भी है। उस बात को आपने नोट रखना है। हम जहां आए हैं ये रास्तों की जंग पर, पहले तो हमने कहा जनाब ये जो निर्द की जंग को हमने देखा, उसके बाद 1947 में जो कुछ हुआ हम उस पे आएंगे। तो इससे पहले ये कि जनाब आली हमारी शनाख्त जो है, हमने जहां से शनाख्त शुरू करनी है वो हमारी ओरिजिनल शनाख्त नहीं है। मसलन गफ्फार खान को ने कहा था कि मैं 50 साल से, उस वक्त 50 साल हो, 50 साल से मैं पाकिस्तानी हूं, 1400 साल से मैं मुसलमान हूं और 6000 साल से मैं पठान हूं। तो मैं वो 6000 साल वाला छोड़ के 1400 और 50 की मैं बात क्यों करूं? उसने फिर उस पर कुछ फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हकीकत तो है ना, इसमें तो कोई वो तो नहीं है ना, हकीकत तो है। और हमारी शनाख्त का एक बड़ा गड़बड़ इस पाकिस्तान के अंदर भी ये है, मैं पाकिस्तान के बारे में भी बात करूंगा, तो ये जवाल का शिकार क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि हमने मजहब छोड़ा, ये तो कोई बात नहीं है, इस्लाम कबूल किया, हमने बाप को छोड़ा है, मसला ये हुआ है, इसका हमारे ऊपर अजाब आया। इंडोनेशिया के लोगों ने भी मजहब छोड़ के इस्लाम में आए हैं, लेकिन उनके रुपये के ऊपर गणेश का इतना बड़ा फोटो लगा हुआ है। सदर इंडोनेशिया से पूछा किसी ने कि जनाब आप मुसलमानों की सबसे बड़ा ममलिकत होते हुए ये बुत क्यों रखा है उसके अंदर? तो सदर इंडोनेशिया ने जवाब दिया कि हमने मजहब छोड़ा है, बाप नहीं छोड़ा है, और हम पहले बाप छोड़ के फिर मजहब अपनाते हैं। इसका बड़ा प्रॉब्लम आता है, अपने बाप को ही गाली देकर। और अब जैसे कि ये एक लंबा एक वो है, खैर मैं इसमें आपको उलझा के लंबा नहीं करूंगा, मैं मकसद में आता हूं जनाब 1947 पे जब पाकिस्तान बना तो चित्राल से कराची तक ये वेस्ट पाकिस्तान बन चुका 1947 14 अगस्त में। उस वक्त गिलगित था जनाब आली कश्मीर स्टेट का हिस्सा, और अंग्रेजों ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जो किया है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप देख लें, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का मतलब होता है कि देखते रहो क्या होता है, मतलब आगे स्टैंड स्टील मतलब वक्त आने पर देखा जाए, इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया था। उसके पीछे फलसफा यह था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बना तो अंग्रेज को कोई तकलीफ नहीं थी, अगर कश्मीर खुद मुख्तार भी हुआ तो भी अंग्रेज को कोई तकलीफ नहीं थी। अगर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना और गिलगित कश्मीर के साथ हिंदुस्तान चला गया तो चतराल से कराची तक बनाया गया पाकिस्तान का मकसद फेल हो जाता था। इसलिए कि दिल्ली का रास्ता वाखान के थ्रू यहां गिलगित से मॉस्को तक थ्रू हो जाता तो फिर यह प्रॉब्लम आता। जब 26 अक्टूबर 1947 में महाराजे ने जब हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, वो हालात ऐसे पैदा हो गए, 27 को श्रीनगर में फौजें आ गई, तो अंग्रेज ने गिलगित के बारे में एक ऑपरेशन लॉन्च किया अपने एजेंट ब्राउन के जरिए। उस ऑपरेशन का नाम था मिशन दत्तखैर। हमें तो ये कहा गया कि इस्लाम के खातिर 1 नवंबर में हमने डंडों से कुल्हाड़ियों से दे मारकर उनको भगा दिया, वो तो हमें ये बताया गया है। इन्होंने पेशावर में जो खेल खेला था उसका नाम था मिशन दत्तखैर। दत्तखैर वजीरिस्तान में एक गांव का नाम है। दत्तखैर का मिशन का गिलगित से क्या ताल्लुक है? उनका मकसद यह था कि गिलगित एजेंसी को खुंजराब से बसरी तक इस इलाके को काट के पाकिस्तान में शामिल किया जाए। बाकी अस्तूर बल्तिस्तान कश्मीर जाए हिंदुस्तान में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉज सिर्फ एक था
کہ دلی اور ماسکو کا راستہ کٹ جائے, کراچی اور چائنا کا راستہ تھرو ہو جائے. یہ ان کا کاز تھا. It was the second world order جس کا ہم شکار ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ہندوستان گلگت کے بارے میں گیا جناب یونائٹڈ نیشن میں, اور ہمارے مجاہدین نے بھی بہت سے علاقے فتح کر کے بہت دور تک گئے, تو انگریز کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا, تو عارضی طور پر پھر یونائٹڈ نیشن کی وہ قرارداد سامنے آتی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں, لیکن آپ کا مت ہے زیادہ کھانا میں نہیں چاہتا ہوں, میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی 1 نومبر سے لے کر 15 نومبر تک, جب تک پشاور سے آدمی نہیں آتا ہے, یہاں گفتگو کی کیفیت تھی. تو ایک فرد, ایک بہت بڑا ہمارا مجاہد, یہ جو کرنل حسن صاحب تھے, اس نے کوشش کی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گلگت کی ایک علیحدہ ریاست, ایک علیحدہ حیثیت بنائی جائے. اور اس نے میٹنگ بھی بلا کے راجہ شاریس خان کو صدر بھی مقرر کر کے کوشش کیا, لیکن نہ انگریز نے تسلیم کیا, نہ پاکستان کی طرف سے باپ نے تسلیم ہوا, نہ کسی اور طرف سے ہوا. وہ تسلیم نہیں ہوا, الٹا جناب کرنل صاحب کو جو ہے محاذ پر بھیجا گیا کہ آگے سے خطرہ ہے, آپ یہاں کیا ریاستوں اور صدر کی باتیں کرتے ہو. وہ واپس آ گئے تو یہ بھی چلا جائے گا, یہ کہہ کر اس کو آگے بھیج دیا. پیچھے سے محمد عالم لا کر جو ہے ہمارا ڈوگرے کا بنایا ہوا گلگت صوبہ, جس کا گورنر گنسارا سنگھ تھا, اس کو اٹھا کر کرنل حسن کا ایک خیال کی ریاست ہو, صدر کو بھی اٹھا کر ہمیں پولیٹیکل ایجنٹ کے انڈر میں ایک ایجنسی بنا دیا گیا. یہ ہے ہماری ترقی اور اس پر ہم خوش ہیں. یہ الٹا ہوا, یہ ٹھیک نہیں ہوا, الٹا ہوا. یہ کتابوں میں تو نہیں ملے گا. یہ باتیں میں کروں گا تو میرے اوپر FIR ہے بہترین آرٹیکل 6 کے تحت, لیکن 6 یہاں نہیں لگتا, آئین ہی نہیں ہے, تو وہ 24 الف لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, 24 الف لگاتے ہیں اسی پر, تو پھر وہ لگنے تو 24 الف نہیں, ہماری طرف سے 124 بلکہ 420 الف لگا دے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن حقائق یہ ہے. اس کے بعد جناب ہندوستان گیا اقوام متحدہ میں کہ جناب پاکستان نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا ہے, تو پاکستان کو سمن کیا گیا. پاکستان نے جا کر اقوام متحدہ کو بتایا کہ ہم نے کوئی قبضے مبضے نہیں کیے ہیں, مہاراجے نے غلط فیصلے کیا ہے, لوگوں نے بغاوت کر کے خود کو الگ کیا ہے. پھر وہاں سے سٹے آرڈر ملا, اس کو کہتے ہیں قرارداد, یونائٹڈ نیشن کی قرارداد. اس سٹے آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی سویلین اور فوجی جتنے لوگ اندر گئے ہیں 2 ہفتوں میں واپس نکال لے, علاقے کو خالی کرے. ہندوستان نے جو فوجیں بھیجی ہے اس میں سے بلک آف کو اٹھا لے. بلک آف کا مطلب 51% لے لے, آپ اٹھا لے, ہم ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے, اور اس کے بعد استصواب رائے ہوگا, اور پوری ریاست اکثریت میں پاکستان کو ووٹ دے دو, پاکستان کا ہندوستان کو دے دو ہندوستان کا. یہ ہے اقوام متحدہ کی قرارداد. اور پھر پاکستان نے ایک اور درخواست بھی گزارا کہ پہاڑی علاقہ ہے, 2 ہفتوں میں ممکن نہیں ہے, تو 6 ہفتے بھی دے دیا. اب 6000 ہفتوں کے بعد نہ پاکستان نے فوج نکالا, نہ ہندوستان نے بلک آف نکالا, نہ اقوام متحدہ نے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا, نہ استصواب رائے ہو گئی. ان دونوں نے اپنے قبضے اور مضبوط کر دیے. کچے قبضے تھے تو پکے کر دیے. یہ ہے ہماری ہسٹری. اب کیا ہے, اب نہیں ہے کیا ہے, اب آئیے تھرڈ ورلڈ آرڈر پر. اب تھرڈ ورلڈ آرڈر پر اگر آپ آئیں گے تو اس کا وہ چیز پھر گھومتا ہے ان راستوں کے بیچ میں, اور نیا نام ہے سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کا مطلب ہے چین سے پاکستان تک ایک راستہ بنایا جائے, اور چائنا کا مال جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور افریقہ تک اور دنیا تک پاکستان کے ذریعے پہنچایا جائے. یہ ہے سی پیک. اور اس کے اندر بہت سی اور باتیں ہیں جن کا آج ہم ضروری نہیں ہے کہ ان سب پر ذکر کریں, لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب اسی امریکہ کو جہاں ماسکو اور دلی کا راستہ کاٹنا مقصود تھا, اب دلی اور سینٹرل ایشیا کا راستہ بنانا مقصود ہے, اور کاٹنا مقصود ہے کشکر سے گوادر تک اور اورمچی سے کراچی تک. یہ کاٹنا مقصود ہے. یہ ہے تھرڈ ورلڈ آرڈر. پوری گیم اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے, کوئی کشمیر نہیں ہے. ورلڈ کے اندر کشمیر کہتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کوئی سری نگر کی بات ہوگی.
बाइडेन श्री नगीर और जम्मू नहीं जानता। बाइडेन जब कश्मीर कहता है तो आपका नगीर है, वो गिलगित है। वो इसके बारे में कहता है वर्ल्ड वाइड आप अब भी कश्मीरी है, वर्ल्ड वाइड आज भी आप कश्मीर का हिस्सा है। यह आपने अपने आप को अलग किया है, बाइडेन ने नहीं किया है, पुतिन ने नहीं किया है, मोदी ने नहीं किया है, किसी और ने नहीं किया है। मैं आपको मसले की हकीकत में आपको समझा रहा हूं। अहमियत आपकी है, कोई श्रीनगर के पीछे किसी का कुछ नहीं है, न जम्मू में कुछ है। मसला सारा ये है कि श्रीनगर से काबुल तक रास्ता चाहिए या इस्लामाबाद से काश्मीर तक रास्ता चाहिए। दुनिया दो ब्लॉकों में तकसीम है। अब वो अमेरिका जो कल तक सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करता था, आज वही अमेरिका पाकिस्तान को दुत्कार के चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को खड़ा किया है। असल मसला ये है, अब हिंदुस्तान और अमेरिका एक तरफ खड़े हैं, चीन और पाकिस्तान दूसरी तरफ खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान को सीपैक चाहिए, अमेरिका और हिंदुस्तान को सीपैक काटना, यह मकसद है। PCEP चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के बजाय अमेरिका की यह ख्वाहिश है कि SAPAC के फॉर चाइना, मतलब चीन को समंदर तक न पहुंचने दिया जाए। और ये पूरा गेम मॉस्को को ग्वादर तक न पहुंचाने के लिए ये जंगें लड़ी गई थी, ये सारी जंगें। और इवन देन बाद की जंगें भी, ये जो इस्लामिक का खाता, ये 9/11 का खाता, ये जो तालिबान का, ये सारी चीजें उसी का कू प्रोडक्ट है, उसी का ही पैदावार है। और अब ये गेम हमारे सामने है। मसला यहां पर ये है, तो ये सारी चीजें अमेरिका तो सोच रहा, चीन तो सोच रहा, हिंदुस्तान सोच रहा, पाकिस्तान सोच रहा, जिसके हाँ ये काम होना है वो सोया हुआ है। और जिसके लिए हो रहा है, जिसके जरिए से होना है, वो सोया हुआ है। BNF का मकसद ये है। हमारा मकसद, हमें ये भी पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के तमाम लोगों को मिल मिला के हम पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, हम अच्छी तरह जानते हैं। हम पुलिस का भी मुकाबला नहीं कर सकते, फौज तो बड़ी चीज है। हम हिंदुस्तान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये भी हमें पता है। चीन और अमेरिका का खुद पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो हम क्या करेंगे ये भी हमें पता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सारी ताकतें हमारे लिए लड़ रही है, तो हम नीचे से लड़ने वालों को कहें कि जिनके लिए लड़ते हो ये भी जिंदा है, हमारी भी कोई हैसियत है। तुम आपस में लड़कर आपस में टेबल पर मत बैठो। मुझे इस बात की तकलीफ है, जब भी लंदन में कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस हो, हुकूमत पाकिस्तान डॉलर दे के लोग भिजवा देती है, हिंदुस्तान लोगों को भिजवा देती है। बात किस पर होती है? गिलगित पर होती है। और गिलगितियों को यह कहा है तुम्हारा कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। नो 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 नो, आप पक्के सच्चे पाकिस्तानी, सच्चे भी नहीं बल्कि सुचे कहते हैं, उल्टा करते हैं, सुचे पाकिस्तानी कहकर बातें कराते हैं कश्मीरियों के। अभी आपने एक चीज को देखा, ये माहिदे कराची जो है, हमें यहां पर यह बताया, मस्जिद में, इमाम बारगाह में, जमात खाने में, पोलो ग्राउंड में, खेल के मैदान में, हर जगह तो यह बताया कि हमने डोगरों को भगा के पाकिस्तान में अलहाक किया। अभी पता चलता है जनाब आली कि एक मुहाजिर जो है फरूक नसीम ने हमारा अलहाक करना है, उसने पेपर बनाना है। वो दूसरा मुस्लिम लीग वाला जो है वो उसको हमारे सरताज अजीज की कमेटी को हमारे लीडरों ने तो इस तरह याद किया था, सरताज कमेटी रिपोर्ट, गोया कि वो, आप नाराज न हो जाए, मजहबी लोग हैं, कोई कुरान की आयतें हो, वो 4 कुल हो, कोई सूरह फातिहा हो, तो इस तरह मजहब में शामिल किया है उस सरताज अजीज कमेटी को। ये सरताज अजीज कौन होता है, उसकी कमेटी कौन होती है, और ये फरूक नसीम कौन होता है? अब आप उन लोगों को कहें जो ये कहते हैं कि हमने 47 में आजादी लेकर पाकिस्तान में अलहाक किया, तो तुम्हारे बाप ने किसने अलहाक किया, वो अलहाक तो बता दो। वो दारुल तंगीर वाले एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए भी 4 हुरूफ लिख के लाया है कि ये जंगल और ये बेवा और ये हथियार हमारा अपना होगा कहकर। आपने क्या लिख के दिया है? इनके साथ कौन सा मुआहिदा हुआ है? आपका मुआहिदा तो चौधरी गुलाम अब्बास और दूसरा वो सदर इब्राहिम ने किया है। न चौधरी गुलाम अब्बास हमारा चेयरमैन है, न इब्राहिम हमारा सदर है। हम क्या अब जानते हैं उन लोगों को, वो कौन है ये भी जानते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने शामिल किया है, जनाब वो कहते हैं उन्होंने किया हमें। अब अगर हम सख्त रवैया इख्तियार करें तो हक पर जानिब नहीं है क्या? इतने फराड के बावजूद भी हम इन फराडियों के साथ देने के लिए तैयार होंगे?
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی ہم تیار ہیں تو ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں. وہاں سب کچھ ملنے کے باوجود یہی کچھ باتیں ہو رہی ہے. مجھے ان بزرگوں کو، ان ساتھیوں کو، بہت ساروں کو پتہ ہے کتنے مشکل حالات سے ہمیں گزارا، کہاں سے گزر کر ہم آئے. پھر انٹرنیشنلی حالات کچھ ایسے ہو گئے. وہ اپنی جگہ پر آج وہی بات ہے جن باتوں کی وجہ سے میں پاکستان کا دشمن ڈکلیئر ہوا تھا، عمران خان عام طور پر کہتے ہیں وہی بات ہے، عام کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پر چل رہا ہے، تو عمران خان بھی کہتا ہے پاکستان امریکہ کا غلام ہے. ہم کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں، ہم کوئی غلط بات تو اس پر ہمارے اوپر سیڈیشنز، ہمارے اوپر جو ہے وہ چارجز لگتے رہے، اور اب آئندہ بھی شاید ہمیں فیس کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں کو. تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں کچھ چیزیں ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے. اچھا، کشمیر پہ آیا ہے تو اس پر ایک نقطے کو میں وضاحت کروں گا. بالورستان نیشنل فرنٹ جب میں نے بنائی تو نام کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری 3 ریاستیں ہیں، بورشال، دردستان اور بلور. آج بورشال پورے علاقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا کیونکہ بلتستان بورشال میں نہیں ہے، اور جامر اور گلگت کی طرف پہ لوگ شاید بورشال کے حامی نہ ہو. اسی طرح دردستان بھی پورے علاقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. شناہ سپیکنگ لوگوں کو بھی اگر ہم درد کے ہیں تو پورا علاقہ شناہ سپیکنگ نہیں ہے بلتستان میں، اور یہاں حسین نگر میں نہیں ہے. بلور کے بارے میں 2 شبہات ہیں. ایک، بلو یہ بلتیوں کے جو ہمسائے ہیں ان کو پلو کہتے ہیں، برجسکی بولنے والے، شنا بولنے والے اور چائنا بولنے والے. اور جب عرب یہاں آئے تو عربی زبان میں پے نہیں ہے، تو پاکستان کو بھی وہ پاکستان کہتے ہیں. اسی طرح یہ بلو کو بنا. یہ ایک شک ہے. دوسرا شک یہ ہے کہ یہ بالاور تھا. بالاور کا مطلب اونچے علاقوں میں رہنے والے لوگ، ہائی لینڈرز. تو ہم نے اس بالاور کو لیا، ہائی لینڈ کو لیا. یہ ایک تجویز ہے. اب آ جائے جناب علی اس کی طرف. یہ کشمیر ڈسپیوٹ کے اندر، اس کشمیر ڈسپیوٹ کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ جب اس وقت 2 ہی نعرے تھے، ایک تو صوبہ بنانے کا نعرہ تھا، دوسرا کشمیر میں ملانے کا تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ جناب ہم نے کشمیریوں سے علیحدگی لی ہے پریکٹیکلی. ہم نہ آزاد کشمیر کے آئین کا حصہ ہے، اگر مقبوضہ کشمیر کا آئین کا حصہ ہے تو پریکٹیکل ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. وہ سرحد پر بیچ میں فوج بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے وہاں پر کوئی لکھ کے دیا ہے. پاکستان کا آئین کا ہم حصہ نہیں ہے، تو لہذا ہم نے وہاں سے آزادی لی ہے، ادھر الحاق نہیں کیا ہے. پھر ہم نے کہا نہ کشمیر نہ پاکستان، دیش ہمارا بالورستان. یہ اس لیے کہا تھا کہ جب ایک کشمیری اپنی خود مختاری کی بات کرتا ہے اور اس خود مختاری میں گلگت کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے کہ بجٹ کہاں سے بناؤ گے، تو دریائے سندھ سے بناؤں گا، واخان سے روٹ نکال کے بناؤں گا، اچھا گنجرات سے روٹ نکال کے میں بناؤں گا، میں ٹوریزم سے میں بناؤں گا. تو وہ ساری چیزیں تو سری نگر، جموں، لداخ کے مقابلے میں ساری ادھر ہے. تو ہم کیوں ان لوگوں میں الجھ کے رہے؟ ہم اپنی بات کیوں نہ کریں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ کل کو الیکشن ہوتے ہیں. اس وقت بھی وادی میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب ہے. 60 لاکھ کے قریب ہندو ہے ادھر جموں میں، اور یہ کوئی 2-3 لاکھ جو ہے ادھر 3-4 لاکھ جو ہے بدھسٹ ہے لداخ میں. اور امپورٹنٹ اور اہم ترین علاقہ گلگت بلتستان ہے، اور گلگت بلتستان کی سرکاری آبادی ہمیں 15 لاکھ بتاتے ہیں، 14 لاکھ سم تھنگ. اگر یہ 20 لاکھ بھی ہو جائے تو جموں کا ہندو عدلی بنیاد پر مجھے ٹو چین کر کے ٹریکٹر کی تالی کی طرح مجھے دلی کیوں کھینچے؟ اور کشمیر کا مسلمان 1.5 کروڑ اور ادھر کا جو ہے وہ کوئی 50 لاکھ کشمیری مل کر مجھے ٹریکٹر کا ٹیلی بنا کر پاکستان لے کر کیوں جائیں؟ اگر پاکستان ہی جانا ہے تو میرے راستے پاکستان کے لیے کھلے ہیں، میرے دریا پاکستان کی طرف ہی جا رہے ہیں. ہمارا پورا رخ پاکستان کی، ہم خود بات کریں نا جی. اگر دلی جانا ہے تو بھی ہم خود بات کریں نا، ہم وایا کشمیر کیوں جائیں؟ تو ہم نے کہا
If Pakistan is the first party of Kashmir dispute, if India is the second party of the Kashmir dispute, if Kashmiri says we are the third party of the Kashmir dispute, why not Gilgit Balti say we are the fourth party of the dispute? اور ہم کیوں نہ کہیں؟ جب ایک کشمیری اپنے علیحدہ ملک کی بات کر سکتا ہے تو ایک گلگتی کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک کشمیری اپنی مرضی سے ڈائلاگ کر کے اسلام آباد اور دلی کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو ایک گلگتی کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہے بی این ایف کے اصل مقاصد. یہ کوئی صرف پاکستان سے دشمنی کی بنیاد یا کسی سے محبت یا اس کی بات نہیں ہے. بات اپنے دھرتی سے محبت کی ہے, بات اپنے آپ سے محبت کی ہے اور اپنے شناخت سے محبت کی ہے. تو میرے بھائیوں, صوبے کا میں خلاف ہوں, آپ سب کو پتا ہے, اور نگیر میں تو میرے خیال سارے صوبے کے حامی ہی ہوں گے, لیکن میں خلاف کیوں ہوں؟ میں خلاف کیوں ہوں؟ اس پر لمبی باتیں نہیں کریں گے. ایک ہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. نگر 1891 سے پہلے خود مختار ریاست تھی. 1974 تک یہ نیم خود مختار ریاست تھی. آپ بے شک راجگیر نظام FCR سے تنگ تھے, ہم بھی تنگ تھے, آپ بھی تنگ تھے. آپ راجے بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی اس پر جو ہے وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کھپا ہونے کی. وہ سسٹم ایسا تھا کہ جس کے خلاف بات اٹھانی تھی آپ نے اٹھایا. اٹھا کے آپ نے کیا کیا؟ اگر اس وقت سوچو, 74 والا سوچو, آپ 74 میں نگیر کو سٹیٹ رہنے دیتے, راجے کی جگہ پر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا مطالبہ کرتے تو فائدے میں تھے, یا راجے کو نکال کر آپ نے تحصیل بنا کر گلگت ضلع میں ضم کیا تو آپ فائدے میں رہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. اور ان کو ہم ہیرو کہتے ہیں جنہوں نے نعرے وارے لگا کر راجوں کو تو ٹھکانے لگا دیا, لیکن علاقے کو بھی ٹھکانے لگا دیا. مشکل سے ضلع بنے ہو تو آپ کہاں آپ کو ریاستیں ملی ہیں؟ ابھی گلگت بلتستان تو چھوڑو, کشمیر کے ساتھ مل کر بھی ریاست ملنے کے چانسز تقریباً معدوم ہو چکے ہیں. یہ غلطی نہیں کرنی ہے, یہ غلطی نہیں کرنی ہے. گلگت بلتستان کے لیے حقوق چاہیے تو حقوق گلگت بلتستان کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کسی میں ضم کر کے نہ ملے, اور اس کو نہ توڑنے دے. وہی ہوگا جس طرح ہندا نگر کے لوگوں نے ریاست توڑ کے تحصیل بنا دیا اور ضلع کے لیے جلوس نکالنا پڑا ضلع بننے کے لیے. اور اسی طرح کل کلا کو پاکستان کے اندر 15 لاکھ لوگوں کا کوئی صوبہ دکھاؤ نا, کوئی رواج ہے ادھر. یہ رواج ہندوستان میں ہے, افغانستان میں ہے, لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں سرائکی صوبہ نہیں بنتا, یہاں کراچی نہیں بنتا, یہاں ہزارہ نہیں بنتا. تو آپ گلگتیوں کو بناتے ہیں صوبہ. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہی ٹھپ ہو جائے گا آپ کو پشاور میں دیر, چترال اور سوات کی طرح لگایا جائے گا. یہ ہے ان کا منظر. اور آپ کے لوگ غلطی سے اس نعرے کا ساتھ دے رہے ہیں, اس لیے میں مخالف ہوں. اور دوسری بات, میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ متنازع رہنا آپ کے لیے رحمت ہے. اگر آپ پاکستان کا آئین کا حصہ ہوں گے تو میں نے ابھی جو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے کی جو تقریر کی ہے, اس پر موت کی سزا والے 10 سے زیادہ دفعے لگ سکتے ہیں. اور یہ جعلی صوبہ بننے کے بعد ہم اور آپ خدا حافظ یہ تقریر میں نہیں کر پاؤں گا. پھر آئین کے گرفت میں آؤں گا نا, پھر اس پر آرٹیکل 6 بھی لگے گا نا. کیا بہاولپور کا آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے جو میں نے آپ سے کی؟ مردان والا کر سکتا ہے, فوجدار والا کر سکتا ہے. وہ کرنے والوں کا حشر بھی دیکھا, ہیلی کاپٹروں سے پھینکتے ہیں اوپر سے. آپ کون سے آسمان سے آئے ہیں, آپ کو معاف کیا جائے گا؟ یا ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ ہم جو ہے خود کو سنبھال سکیں گے؟ آپ کی متنازع حیثیت نے آپ کو تھوڑا بہت وقار دیا ہے. جس روز یہ متنازع حیثیت ختم ہوگی, آپ بہاولپور کے لوگوں کی طرح سر میں ٹوکرے لے کر یہاں جو ہے نا وہ شہروں میں جو ہے کھلونے بیچیں گے. اس سے زیادہ کام ہم نہیں کر پائیں گے. یہ میں دیکھ رہا ہوں. اور جناب علی, میں آپ سے یہ گزارش کروں, حقوق بھی اتنے جلدی نہ ملے تو بہتر ہے. آپ کہیں گے یہ کیا غدار نکلا. 8 سال کی عمر کے بچے کا شادی کرے تو کیا حشر ہوتا ہے؟ بےزتی ہوتی ہے نا, کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہم اب بھی 8 سال 10 سال اور چاہیے ہمیں بالغ ہونے کے لیے. میں آپ سے گزارش کروں, اس وقت
ये जो इंतजामी शोभा नाम दिया, मैं शोभा मोहब्बत तो नहीं कहता, ये जो आपको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिली है, 3 वज़राया आला गुजरे, वो आपकी गिलगित के ही है। एटम बमों की तो वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान को जरूरत नहीं है, फॉरेन पॉलिसी का तो गिलगित बल्तिस्तान को वैसे भी जरूरत नहीं है, करेंसी बनाने के भी हम कोई शौकीन नहीं है किसी का फोटो जो नोट पर रखे। ये एजुकेशन, हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, जंगलात, एलजीआरडी, ये तो इनको मिले हैं ना। आप क्या तब्दीली देख रहे हैं उसके अंदर? कोई तब्दीली आई है आज तक? यहाँ इस्लाम की बात की जाती है, फ्रॉड हो रहा है। यहाँ इस्लाम के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इस्लाम आपको यूरोप में नजर आएगा। मैं उन लोगों का कोई नुमाइंदा इधर नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं अमीर मेंबर नहीं हूं आपका, आप सबको पता होगा, माशी तौर पर मैं एक कमजोर आदमी हूं। 1 लाख रुपया में इनाम दूंगा अगर कोई शख्स अमेरिकी सदर के चपरासी का नाम बताएगा तो, या बरतानवी वज़ीर आज़म के या फ्रांस के सदर के चपरासी का नाम कोई मुझे बताएगा तो 1 लाख रुपये में दूंगा। मलके के बारे में नहीं कह सकता, उसके नौकर चाकर ज्यादा होंगे। मुझे ये पता है कि अमेरिका के सदर का चपरासी नहीं है, वो अपना फाइल खुद लेकर जाता है, वो अपना